गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं की इंग्लिश कंपलसरी की महत्वपूर्ण पोएम जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन 15 नंबर के लेसन पर बनी हुई यहाँ पर है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। मेलैंकोली जैक्स is the mouthpiece of William Shakespeare. William Shakespeare, he is compared to our famous Sanskrit writer, legends, Kalidas. He has composed many poems. His works include 38 plays in his lifetime. 154 sonnets. 154 sonnets. Sonnets, a poem of 14 lines. Consider. And 2 long narrative poems. So, before going to learn this poem, first of all, there is a diagram on this poem. We have to वॉच इट। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी के महानायक शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के जीवन को 7 भागों में कितना बढ़िया सा बांटा है, आप देख सकते हैं। शेक्सपियर की इस प्यारी पोएम को समझने से पहले हम उधर पोएम का कुछ पार्ट लेंगे और फिर आपको स्केच पर मिलाऊंगा। शेक्सपियर ने पहली लाइन में ही बोल दिया है द 7 एजेस में ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। ये मेटाफर का बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि सारी दुनिया एक रंगमंच है। इट्स मेटाफर। वो कहते हैं ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, कि दुनिया के सारे आदमी और सारे जो औरतें हैं वो केवल एक खिलाड़ी हैं। वो केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। एक दिन उनका आना होता है और दुनिया से चला जाना होता है। दे हैव देयर एग्जिट्स यानी यहाँ से दुनिया से चला जाना, और एंट्रेंस यानी दुनिया में आना, उनका आना जाना होता है। एंड वन मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति उसके जीवन में बहुत सारी भूमिका अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी जो एक्ट्स है उसको 7 भागों में बांटा। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्केच के द्वारा ऑल द वर्ल्ड स्टेज। लेखक ने पहले लाइन में कहा था ना कि पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, वो सारे आदमी जो औरत हैं वो केवल खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं प्लेयर्स के रूप में उसको कहता है। प्लीज लुक हियर, the world is a stage. On this stage, one day a man come and exit from this world of forever, and you can look here, 4 people. You look the first of all, before going into detail, I have to give you all the 7 stages through my sketch here. First stage, infant age. Second, schoolboy. Third, lover stage. Fourth, soldier stage. 5, justice stage. 6, pantaloon. It's a comic character like pantaloon stage. Then man himself herself becomes like a comic person in the society. Comic person like. And last stage is second, childishness. You may see the man who goes here and there using sticks. Second, childishness. His or her all types of habits resembles to an infant. Both don't have the power to do anything more. They don't have power to eat. They don't have power to digest, etc. So, at last stage, after coming in this stage,
he exit from this world of forever. He exit from this world of forever. You may see here 4 people are there, you look, and the person going towards his next world, crossing the bar. So we have to know with the example of poem. Please look here. The writer writes in his first lines, all the world's stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his lifetime plays many parts, his acts being 7 ages. लेखक ने उसकी कार्य, उसके जीवन को 7 भागों में बांट के रख दिया है. एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला अगर पूछा जाए, एट फर्स्ट द इन्फेंट यू मे लुक हियर. इन्फेंट, newborn baby, infant like newborn baby, infant age. At first infant, what does he or she do? What does a baby do? At first the infant, mewling and pucking. Mewling रोता है, उल्टी करता है. Mewling and pucking in nurse arms. In nurse arms, वो नर्स के आर्म में क्या करता है? रोता रहता है, उल्टी करता रहता है. सबसे पहली स्टेज आपने बताया होगा. और पहली स्टेज की जो तुलना है वो लास्ट स्टेज से की गई है. आपको बता दें, both have the same types of habits and same types of all the day to day work. So the writer compares both the age with the second childishness. तो लेखक यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताता है. लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले वह शिशु होता है. सबसे पहले क्या होता है? वह शिशु होता है. The first stage of life is known as infant in the world. As a child, he is a helpless man and he is supposed to depend on his nurse for everything. He can't do anything more. He depends on others, just like the old person. He weeps and vomits all the time in the lap of his nurse. वोमिट करता है, रोता रहता है, क्राई करता रहता है. His all demands only remaining with crying. In this, अब आपको मैं ले जाता हूँ सेकंड स्टेज के अंदर ले जाता हूँ कि यहाँ देख सकते हैं आप. Then the winning school boy, सेकंड स्टेज आपको बता दूँ. ये विनिंग स्कूल बॉय, जो बच्चा स्कूल जाने के स्टेज में आता है, जब थोड़ा बड़ा होता है वो स्कूल जाता है. विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेचल यानी उसका बैग होता है, उसके बैग के साथ जाता है. आप देख सकते हैं स्केचिंग में, मैंने आपको देख सकते हैं ये बैग बता रखा है इसमें. विथ हिज सेचल, उसके बैग के साथ जाता है. एंड शाइनिंग लाइक मॉर्निंग फेस, क्रिपिंग लाइक अ स्नेल. क्रिपिंग लाइक, को लाइक दे रखा है, लाइक मतलब ये सिमिली का एग्जाम्पल है. whenever you are asked to write a simile from the given lines or given sentence or given poem, then you have to keep in mind that this line is very beautiful to write as an example of simile. तो यहाँ पे very sexual and shining morning face. सुबह का चेहरा कितना चमकता रहता है. बच्चों को देखना है जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, कितना खूबसूरत चेहरा दिखता है. और शाम की हालत देख करके हमको बड़ी हंसी आती है. पूरे बिखरे से बाल, आधा शरीर का भाग इधर, आधा उधर, कपड़े उधर कपड़े. लेकिन सुबह मम्मी कितनी प्यार से संभाल के भेजे. शाइनिंग लाइक मॉर्निंग फेस, क्रिपिंग लाइक स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल, और बिना इच्छा के स्कूल जाता है. ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, अनविलिंगली टू स्कूल, बिना किसी इच्छा के जबरदस्ती जाता है. उसको उठाकर रखने जाना पड़ता है. Now we comes toward the third stage and then the lover. जब थोड़ा विद्यार्थी की अवस्था से ऊपर जाता है तो थोड़ा उसका जो मानसिक स्थिति थोड़ा चेंज होने लग जाती है और वो आ जाती है उसकी, वो लवर की स्टेज में जाता है. दिस इज द गिफ्ट गिवन बाय गॉड. ही कम्स इन दिस स्टेज ऑटोमेटिकली. एवरीबडी हैज टू फेस दिस स्टेज एंड देन द लवर. साइंग लाइक फर्नास यानी भट्टी, जिसको कहते हैं आग की भट्टी होती है, ऐसी उसकी तुलना कितनी गजब की. देखो आप सिमिली बताइए
कि साइंग लाइक फर्नास, ही इज कंपेयर्ड टू फर्नास, भट्टी जो बहुत हीट देती है, उससे उसकी तुलना की गई है। विद ए वोफुल बेलार्ड, वो क्या करता है, कविताएं लिखता है, अलग अलग तरह की बेलार्ड लिखता है, कविता लिखता रहता है। इसके लिए मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, किसके लिए, उसकी मिस्ट्रेस की आईब्रोज के लिए लिखता है वो। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ए स्कूल बॉय ट्रांसफर इनटू यंग मैन, एक यंग मैन स्कूल बॉय से कहाँ होता है, उसमें चलता है लवर में। अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स टेक्स बर्थ इन हिम, impatiently signing like a furnace for his beloved. He sings pathetic love songs. Pathetic love songs को गाता रहता है। He writes poems and ballads praising even his beloved's eyebrows. उसकी beloved जो मिस्ट्रेस होती है उसके eyebrows के लिए वो गीत गाता रहता है। तब मनुष्य की चौथी स्टेज आती है, देन ए सोल्जर। सोल्जर की स्टेज आती है, आप देख सकते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। स्ट्रेंज ओथ्स कसम होती है, लेकिन स्ट्रेंज ओथ्स का मतलब इसमें बताया गया है वो ही यूजेज रॉन्ग वर्ड्स, गालियां देता है वो, गंदी गंदी बातें करता है, गालियां देता है वो, दाढ़ी रखता है वो। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी की तुलना किससे की, देखो यहाँ पर फिर सिबिली का एग्जाम्पल है, बियर्डेड लाइक द पार्ड। लेपर्ड होता है जो पैंथर, उसकी दाढ़ी जैसी दाढ़ी रखता है वो, भद्दी दाढ़ी जिसको कह सकते हैं, दुनिया को नहीं पसंद होती ऐसी रखता है। और गंदी गंदी गाली वाली स्टेज में आता है। सोल्जर की स्टेज लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, जेलस इन ऑनर, बस कुछ भी प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या रहती है उसके अंदर, है ना, ईर्ष्या उसके कोने कोने में भर जाती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कहते हैं एक मैन की जो स्टेज होती है ना, इसके बाद की स्टेज होती है वो झगड़ालू हो जाता है हर समय। देखना आए दिन आप देखना, यू हैव हर्ड द लॉट ऑफ क्राइम्स कम इन दिस स्टेज व्हेन ए बॉय or a girl comes in the stage of in this stage and he or she is ready to sudden and quick in quarrel। तो कहा गया है कि 20 साल से लगाकर 30-35 साल की जो उम्र होती है वो ये सोल्जर की उम्र बताई गई है, जिसमें वो लड़ाई झगड़े में आ जाता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन है, थोड़ी सी भी रेपुटेशन प्राप्त करने कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, वो उसको थोड़ा सा हर बात में लगता है कि आई एम द राइट एंड अदर पर्सन आर रॉन्ग, और उसके लिए वो कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि किसका सामना करता है, कैनन समझते हो, तोप कहते हैं जिसको, तोप के मुंह का भी सामना कर सकता है वो। यानी कि ही और शी कैन fall into the danger condition also, only to seek the bubble reputation, only to gain the reputation which is not accepted by our society. So he is totally a quarrelsome, a dangerous personality, and every time he is considered like a fighting person in the stage of soldier stage. सोल्जर स्टेज के बाद आता है एंड देन द जस्टिस। तब अगली स्टेज जो आती है मित्रों, जस्टिस की। व्यक्ति अपने जीवन में न्यायाधीश बन जाता है। वो 40 साल की उम्र के आसपास पे जाता है, 40 से लगाकर जो 60 साल की उम्र के आसपास जाता है तो जस्टिस की अवस्था में आ जाता है। वो तो छोटा मोटा न्यायाधीश बनने लग जाता है, समाज का ठेकेदार बनने लग जाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली। लेखक ने बहुत जोरदार बताया उस समय की तत्कालीन जो भ्रष्टाचार था, आज भी वही भ्रष्टाचार मौजूद है समाज में। उस भ्रष्टाचार पर कवि ने बहुत बड़ा सटायर व्यंग किया है। इन फेयर राउंड, मोटा उसका पेट हो जाता है। विद गुड केपुन डाइंड, इसमें मुझे यहाँ बात बतानी पड़ेगी कि वो बड़े बड़े गिफ्ट में मुर्गे इत्यादि, केपुन यानी मुर्गे इत्यादि जो प्राप्त करता है और उनको खा खा के उसकी पेट बहुत मोटा हो जाता है। मतलब मुफ्त की गिफ्ट खाता है और गलत निर्णय देता है। जस्टिस की उम्र में आ जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा ही समाज का ठेकेदार समझता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपुन लाइन विद आईज सीवियर, उसकी आंखें ऐसी हो जाती है डरावनी आंखें, सामने वाले को उसका जो निर्णय वो स्वीकार करना पड़ेगा ना। सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी ऐसे रखता है फैशनेबल दाढ़ी, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फ्रेंच कट वगैरह देखी होंगी आपने। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फैशनेबल दाढ़ी इत्यादि रखता है वो। फुल ऑफ वाइस सोज, और बड़ी बड़ी बातें करता है। वाइस सोच मतलब बड़ी बड़ी सेइंग्स, नई नई बातें निकालता है, बुद्धिमानी की बातें करता है कि ऐसे समाज में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भले वो ऐसा है या नहीं।
फुल ऑफ वाइज शोज एंड मॉडर्न इंस्टांस। और आधुनिक उदाहरण देता है, सब आधुनिक उदाहरण देता है, देखो वहाँ ऐसा हुआ, अभी देखो ऐसा हो रहा है, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इस तरह से वो समाज में अपनी भूमिका अदा करता रहता है, अपनी भूमिका अदा करता रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ा करारा व्यंग है लेखक का इस पर, न्यायाधीशों पर, जो कुछ भी कर सकते हैं, सही ढंग से अपना न्याय देते नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यायाधीश की स्टेज मैंने स्केचिंग के द्वारा बताई स्केच। फिर अगली जो आप सकते हैं पेंटुलून, बड़ा हास्य इसमें बताया लेखक ने, देखो या पेंटुलून की अवस्था ली। ये एक इटालियन का कॉमेडियन ह्यूमरस कैरेक्टर लिया है लेखक ने। उसको देखकर लोगों को बड़ी हंसी आती है, आंखों पे चश्मा आ जाता है और उसके आंखों के नीचे थैलीनुमा गड्ढे बन जाते हैं, या आंखें होती इसके थैलीनुमा गड्ढे बन जाते हैं और बड़ा ही अजीब डरावना चेहरा धीरे धीरे बनने लग सकता है मनुष्य की अगली अवस्था के अंदर। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटुलून, है ना, बड़ा दुबला पतला हो जाता है। स्लीपर्ड पहना हुआ पेंटुलून, बिल्कुल, है ना, दुबला पतला हास्यास्पद व्यक्ति विद स्पेक्टेकल्स और नोज, उसके नाक पर क्या आ जाता है, चश्मे आ जाते हैं। पाउच ऑन साइड, और आंखों के नीचे पाउच यानी गड्ढे बनने लगते हैं। ही यूथफुल होस, उसके जवानी के जो संभाले हुए जो उसके मोजे होते हैं, जवानी में बड़े बड़े पैर होते हैं ना उसके, मोटे मोटे अच्छे उभरे हुए पैर, लेकिन अब पैर क्या होते हैं, पतले पड़ जाते हैं, तो वो जो मोजे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ढीले होकर नीचे उतर लग जाते हैं। पकड़ पकड़ के बांधता रहता है, या उसको ऊपर रबर बैंड लगा के वो करता रहता है, बांधता रहता है। ही इज यूथफुल होस वेल सेव्ड, जो उस समय के बचाए होते हैं। कई लोग देखना कि अपनी जवानी से लगाकर बुढ़ापे तक वो कई अवेयर रखते हैं और उनको बार बार पहनते थे। वेल सेव्ड है वर्ल्ड टू वाइड फॉर ही श्रंक सैंक, और उस दुनिया के लिए उसने जो अवेयर के रखे थे पूरी तरह से, उनका उपयोग करता है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और जो व्यक्ति जो होता है जब जवानी में देखना बड़ा जोरदार से, जैसे कि कोई बूल हो, ऑक्स हो, जैसे बोलता है ऐसे, उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लग जाती है। बिग मैनली वॉइस किसमें बदल जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और बच्चे जैसी आवाज आना से पतली आवाज आना वापस शुरू हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि वास्तव में क्या, जिस तरह से प्रकृति ने कहीं हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, प्रकृति हमेशा वैसे ही चल रही जैसे दुनिया चल रही है, लेकिन ये मनुष्य ही है जो अपने स्वार्थ के कारण अपने आप को बदलता रहता है। यहाँ पर प्रकृति कह रही है कि जब प्रकृति सुबह देती है तो शाम देती है, सुबह और शाम एक जैसी बनाई है। सुबह में देखना सूर्य से निकलने से पहले भी आप देख सकते हैं उसमें कि पूरा वो बता रखा है, डस्क और डॉन का जो सिस्टम देख सकते हैं आप, कि लालिमा छाती है। शाम को भी सूर्य के छुपने में लालिमा छाती है, सूर्य के निकलने लालिमा से पहले भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा सा लगता है, शाम को अंधेरा जाता है। हमें लगता नहीं कई बार कि सुबह है शाम। ईश्वर ने भी ऐसे ही बताया, जब आप शुरुआत में आते हैं तो बच्चे जैसे दिखते हैं, जब जाते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्ड ट्रेबल पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज में विशल बजने लग जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कि दांत भी टूट जाते हैं, जब बोलते हैं तो पोपला हो जाता है, और जैसे बोलना चाहता है तो मुंह से आवाज निकल जाती है, विशल पतली आवाज होने लग जाती है। कहने का मतलब बड़ी ही गंभीर अवस्था में धीरे धीरे वो एक हास्यास्पद कॉमेडी के रूप में बनता जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज, लास्ट सीन ऑफ जीवन का जो अंतिम सीन। कहते हैं कि जिंदगी इस स्टेज पर आने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं कब अभी दुनिया से प्रस्थान कर जाऊँ। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये जो पूरी इवेंटफुल हिस्ट्री आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हो, पूरी हिस्ट्री, उसका इतिहास जो होता है अब बदलने लग जाता है। धीरे धीरे जो बच्चे को जो बातें याद नहीं रहती, छोटा सा बच्चे को, उस तरह उनके भी दिमाग में नहीं रहती। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, कितना बढ़िया बताया देखो। द राइटर शिफ्ट्स द एज इनटू सेकंड चाइल्डिशनेस डायरेक्टली कंपेयर टू द इन्फेंट एज एंड मियर ओब्लिवियन, और पूरी तरह से का तो सब भूल जाता है, मियर ओब्लिवियन हो जाता है। मतलब उसको जो कुछ भी होता है वो भूलने लग जाता है, सब कुछ भूलने, धीरे धीरे सारी स्टेज में भूलने की स्थिति में आ जाता है, मियर ओब्लिवियन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सेंस यानी विदाउट टीथ। हम कह सकते हैं न तो मुंह में दांत होते हैं न पेट में हाथ रहते हैं। इस तरह छोटे बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं और पेट में हाथ भी हमको समझ में नहीं आती। कुछ खिलाते हैं तो उसके डाइजेस्ट होने की कोई गारंटी नहीं, तो बुढ़ापा वही कहता है कि जो खिलाया उसकी गारंटी नहीं है वो डाइजेस्ट होगा। सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। सेंस टीथ बिना दांत का, दांत गिर जाते हैं।
सेंस आइज, बिना आंखों का। छोटे बच्चे देखना, बिल्कुल हम उसके पास भी जाके देखते तब भी हमको देख नहीं पाते वो। सेंस आइज, सेंस टेस्ट, बिना टेस्ट का हो जाता है, टेस्ट नहीं आता, कुछ भी खाता है उसको अच्छा नहीं लगता, लगता है इसमें तो गंदा टेस्ट आ रहा है। सेंस टेस्ट, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सब कुछ बिना का हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, केवल he waits only to depart from this world. He generally chants the mantras etc. sleeping on his or her bed and only pray to God that please take me from this world of ours and take me with them. और वो हमेशा प्रार्थना करता रहता है। विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छा बताया। लास्ट स्टेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंतिम स्टेज है, देख सकते हैं आप, बुढ़ापे की लकड़ी दिख रही है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, और इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आता है, और धीरे धीरे दुनिया से एग्जिट कर जाता है, और एग्जिट की अवस्था आप देख सकते हैं। इट्स अवर रियल लाइफ टाइम। इट बिगिंस फ्रॉम इन्फेंट, एंड फ्रॉम इन्फेंट देन स्कूल बॉय, then lovers, then soldier, then justice, then painful stage, and last second childishness, which old age, and leave this world forever. Very beautifully the writer Shakespeare here explained before us all the 7 stages of our lifetime. You may look here once again, boys and girls. I'll recitate the poem for your help. Please come with me and recite with me. मेरे साथ आप कविता का पठन करेंगे, काव्य पाठ करेंगे मेरे साथ. Please come. All the world is a stage, and all the men and women merely players. And all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his lifetime, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. उसके acts को 7 भागों में बांटा है. At first the infant, mewling and pucking in the nurse arms. Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail. Is compared to snail. Similes here. Unwillingly to school. He does not want to go to school. Unwillingly to school. And then the lover. And then the third stage. And then the lover. Sighing like furnace bhatti with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the power, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise shows, and modern stance. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and sleeper pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved, a world too wide, for his strong sing, and his big manly voice,
and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes, turning again toward childish treble pipes, and whistles in his sound, and whistles in his sound. Last scene of all, that ends this strange eventful history, that ends this strange eventful history, is second childishness, and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything, says by William Shakespeare, as the mouthpiece, as with the help of its mouthpiece, melancholy Jack's monologue like parentheses. The poem has been written in iambic pentameter. You know iambic pentameter आप यहाँ देखें, मैं हिंदी में बिल्कुल क्लियर करता हूँ. इयाम्बिक पेंटामीटर, एक जो मीटर होता है, मैं मीटर लैंग्वेज और इसमें स्टाइल बात कर रहा हूँ, मीटर अलग नहीं समझे. एक मीटर का अर्थ होता है जिसमें दो स्वर आते हैं, दो सिलेबल्स. स्वर यानी सिलेबल्स यानी वाउल साउंड को सिलेबल्स कहते हैं, वाउल साउंड को सिलेबल्स कहते हैं. और अगर एक मीटर के अंदर दो सिलेबल्स आते हैं, यानी दो वाउल्स आते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें 2 वाउल्स, इसमें 2 सिलेबल्स, इसमें 2 सिलेबल्स, इसमें 2 सिलेबल्स, इसमें 2 सिलेबल्स. अब कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए. तो 5, इसका मतलब 1 मीटर बराबर क्या हो गया? 2 सिलेबल्स हो गया. तो कितने मीटर हुए? 5 मीटर. देख लो, 1 2 3 4 5 मीटर हैं. तो 5 को पेंटा बोलते हैं, पेंटामीटर कहते हैं. इसलिए पोएम किस में लिखी गई है? पेंटामीटर में लिखी गई. और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अलग अलग देखो, एन ऑल, द मेन, एंड वो, मीन, मियर, ली, प्लेयर्स. ये मैंने इसको 5 भाग में बांटे, पेंटामीटर में बांट रखे हैं. तो पोएम इयाम्बिक पेंटामीटर में है. मोनोलॉग मैंने बता दिया, व्हेन वन पर्सन स्पीक्स एंड अदर्स लिसन्स हिम केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग हिम, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग. तो आप मोनोलॉग में देख सकते हैं मेलंकली जैक्स पूरी कविता को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और यहाँ पर बाकी सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस है, उनको सुन रहे हैं. तो मित्रों, मैंने मेरे हिसाब से अच्छा समझाने की कोशिश की है आपको 7 स्टेज के बारे में. आप इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको भविष्य में मेरा सहयोग मिलता रहे. मेरा यूट्यूब चैनल सतीश कुमार व्यास हिंदी में लिखा होगा साथ में श्रेष्ठ, उसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करें. अधिकतम मित्रों तक भेजें, अधिकतम विद्यार्थियों तक भेजें, गांव के दूर एरिया तक भेजें, ताकि हमारे जो बच्चे एक नए युग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक आगे अच्छे अंकों के लिए लालायित हैं, उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और उसका लाभ आप भी लें. मैं इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. टिल देन, फॉर द नेक्स्ट पोएम I will take depart from you. Till then, goodbye and goodbye. Thank you once again.